Hello everyone, welcome to my channel. Today we will do reading Cambridge 17, question number 24 to 27. This is a MCQ type question. We will do this question together. So first I will make you practice. You would have 30 seconds for that, for a particular question, and then I will discuss each question. So let's get started with the question types. Students, this is question number 23. You have only 30 seconds to solve this question. First, try to read the statement very carefully and then try to read the passage. First step is to read the statement, then come to your passage and read the passage very carefully. After that, come to your options and eliminate your wrong options. The options which seems wrong to you, try to cross that. After that, definitely you would get the correct answer. So this is the strategy which you should follow. Otherwise, if you have any other strategy, you can work on that also. But for now, you have 30 seconds to solve this question. But before 30 seconds, let's read the instructions first, which we are going to do right now. Choose two letters A to E. Write the correct letters in the boxes 23 and 24 on your answer sheet. Now you have 5 options. Out of these 5 options, you would select 2 options. So there are 2 options which are correct. You need to select that. And in your answer sheet, you have to write option number 1 in front of question 23 and option number 2 in front of question number 24. So this is how you need to write your options on your answer sheet. Okay, now I'm going to start the timer. Students, time up. Now let's see what are the correct answers. Question number 23, the correct answer is C. And of question number 24, the correct answer is D. Now if you get your answers correctly, then well done, pat at your back, and you can skip the discussion of these questions and you can move towards question number 25 and 26. But if any of these answer is wrong, then try to listen me very carefully. Okay, now the question is, when comparing 20th century stadiums to ancient amphitheaters in section D, which two negative features does the writer mention? Now we have to select 2 negative features. Now these 2 negative features are given in section D. This is section D, so we have to read this paragraph very carefully and we just need to pick out 2 negative features. Let's read the paragraph now. There are many similarities between modern stadiums and ancient amphitheaters intended for games. उन्होंने बोला है कि बहुत सिमिलैरिटी है मॉडर्न और एंशियंट जो थिएटर्स बने थे जो सिर्फ गेम के लिए बने थे वहां पे बहुत सारी सिमिलैरिटीज है बट सम ऑफ द फ्लेक्सिबिलिटी वाज लॉस्ट एट द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी. बट 20th सेंचुरी की स्टार्टिंग में क्या हो गया, फ्लेक्सिबिलिटी लॉस्ट हो गई. कैसे? As stadiums were developed using new products such as steel and reinforced concrete and made use of bright lights for nighttime matches. अब स्टेडियम्स जो है ये वाला मटेरियल यूज करने लग गए, उससे क्या हुआ, फ्लेक्सिबिलिटी लॉस हो गई. फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है? फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स कि कोई चीज जिसमें हम चेंजेस जो है वो नहीं कर सकते, हमारे पास रिजिडिटी आ जाती है, हमारी जो फ्लेक्सिबिलिटी है यहाँ पे वो लॉस्ट हो गई है, अब कोई चेंजेस हम उस जगह पे नहीं कर सकते. सो ये नेगेटिव फीचर है कि हम जो स्टेडियम है उसमें अब कोई न्यू चेंजेस नहीं कर सकते. Let's read ahead. Many such stadiums are situated in suburb areas, designed for sporting use only and surrounded by parking lots. This is also the negative point कि अब जो cities है सब urban area जो है वहीं पे stadium सिर्फ है और वो किसके लिए बनाए गए हैं? They are designed for sporting use only and surrounded by the parking lots. So ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है. These factors mean that they may not be accessible to the general public, require more energy to run and contribute to urban heat.
अब क्या है, इन फैक्टर्स का ये मतलब है कि अब ये जनरल पब्लिक के लिए असेसिबल नहीं, मतलब जो मेन जिन्होंने सिर्फ स्पोर्ट्स खेलना है वही लोग स्टेडियम में आ सकते हैं। जनरल पब्लिक कोई एक्सरसाइज करना है, किसी ने योगा करना है, किसी ने वॉक करनी है, वो इन स्टेडियम पे नहीं आ सकते। तो ये भी हमारा नेगेटिव पॉइंट है। रिक्वायर मोर एनर्जी टू रन एंड कॉन्ट्रीब्यूट टू अर्बन हीट। और ये जो स्टेडियम है ये एनर्जी बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करे, पॉपुलेशन जो है वो एनवायरमेंट में दे रहे हैं। तो बेसिकली हमें यहाँ पे तीन जो है वो नेगेटिव पॉइंट देखने को मिले हैं। द फर्स्ट नेगेटिव पॉइंट वाज रिलेटेड टू द flexibility, second point was related to the location, suburban area, and the third point is related to the thing is not accessible for the general public. ठीक है, और एक फोर्थ भी है कि हमारे पास जो एनर्जी है वो ज्यादा लगने लगी है, पोल्यूशन होने लग गया। अब हम अपने क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे और चेकअप करेंगे क्या नेगेटिव फीचर्स है हमारे पास। नंबर ए इज दे आर लेस इमेजिनेटिवली डिजाइन्ड। ओके, तो डिजाइन की तो उन्होंने बात ही नहीं की, सो डेफिनेटली ए को तो हम क्रॉस कर देंगे क्योंकि डिजाइन की तो यहाँ पे कोई बात नहीं हुई। दे आर लेस स्पेशियस, स्पेशियस भी नहीं है क्योंकि स्पेस की भी उन्होंने कोई बात नहीं की कि ये टाइट है या जगह कम है, कोई हमें स्पेस की भी बात नहीं हुई, स्पेशियस भी रॉन्ग है। दे आर इन लेस कन्वीनियंट लोकेशन। यस, लेस कन्वीनियंट लोकेशन क्यों है? क्योंकि उन्होंने बोला है कि अब ये सिर्फ सब अर्बन एरिया में ही जो स्टेडियम बनेंगे, तो जो बाकी है, जो विलेज साइड पे रह रहे हैं, जो कंट्री साइड पे रह रहे हैं, वो कहाँ पे जाएंगे? लेस कन्वीनियंट लोकेशन, दिस इज द करेक्ट आंसर। देन दे आर लेस वर्सेटाइल। अब लेस वर्सेटाइल, वर्सेटाइल मतलब होता है कि किसी चीज को अडेप्टेबल करना, किसी चीज को अडेप्ट करना। लेस वर्सेटाइल मतलब कि कोई न्यू चेंजेस आई है, हम उसको अडेप्ट नहीं कर पा रहे। हमें स्टार्टिंग में बताया है कि ये फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो लॉस हो रही है, सो दिस इज ऑल्सो द करेक्ट आंसर। दे आर मेड ऑफ लेस ड्यूरेबल मटेरियल्स। लेस ड्यूरेबल मटेरियल मींस वो वाला मटेरियल जो ज्यादा देर नहीं टिक, जैसे कच्चे हाउस होते थे वहां पे हम मिट्टी यूज करते थे, और जो भी कच्चा हाउस बनाने के लिए जो भी मटेरियल यूज होता था वो लेस ड्यूरेबल था, वो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं चलता। पर यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो स्टेडियम्स है, यहाँ पे स्टील यूज हो रहा है, यहाँ पे री-इन्फोर्समेंट कंक्रीट यूज हो रहा है, और यहाँ पे नाइट मैचेस के लिए लाइट यूज हो रही है। सो बहुत सारे ऐसा चीजें हैं जो ड्यूरेबल है। डेफिनेटली जो ई है दैट इज नॉट द आंसर। पैसेज को अच्छे से अंडरस्टैंड करो, आपको क्लैरिटी हो जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चंस कैसे बन के आते हैं एग्जाम में, और आपको पता चल जाएगा कि कैसे हमने आंसर्स को एलिमिनेट करना है। आपकी रीडिंग अच्छी होनी स्टार्ट हो जाएगी, थोड़ा सा इस पे वर्क करने की जरूरत है। ओके, so now let's move towards next question. Now this is question number 25 and 26. Again you have to choose two options from these A to E, and you have 30 seconds to do this question. So time starts now. Okay, time's up. Let's see what are the answers. For question number 25, the correct answer is B, and question number 26, the correct answer is E. अब क्योंकि इन्होंने बोला है कि 25 और 26 के लिए you have to find two letters, तो अगर आप 25 के आगे E और 26 के आगे B लिख रहे हो, then also your answers are correct. Okay, so hierarchy का इसमें कोई फर्क नहीं है कि B पहले आएगा या E पहले आएगा, दोनों ही क्वेश्चन 25 और 26 के आगे B या E, these are the answers. Let's have a discussion on these questions. सबसे पहले हम पढ़ेंगे question and then we will move towards the paragraph. Which two advantages of modern stadium design does the writer mention? अब हमें इस question में we are going to look at the advantages. So let's read. But many of today's most innovative architects see scope for the stadium to help improve the city. उन्होंने बोला है कि बहुत सारे architect हैं जिन्होंने की innovative ideas निकाल लिए ताकि हम क्या करें, city को improve करें. Among the current strategies to seems to be having a particular success
सक्सेस द स्टेडियम एज एन अर्बन हब एंड एज अ पावर प्लांट। दो स्टेडियम है जिनको की सक्सेस मिली है, उनका नेम जो है वो हाईलाइटेड। देयर इज अ ग्रोइंग ट्रेंड फॉर द स्टेडियम्स टू बी इक्विप्ड विद द पब्लिक स्पेसेस एंड सर्विसेज दैट सर्व अ फंक्शन बियॉन्ड स्पोर्ट्स सच एज द होटल्स, रिटेल आउटलेट्स, कॉन्फ्रेंस सेंटर्स, रेस्टोरेंट्स, बार्स, चिल्ड्रन प्लेग्राउंड्स एंड ग्रीन स्पेस। अब उन्होंने बोला है कि ये ग्रोइंग ट्रेंड हो गया है स्टेडियम का, क्या कि वो इक्विप हो गए हैं, किसके साथ इक्विप हो गए हैं, इक्विप्ड विद पब्लिक स्पेसेस एंड सर्विसेज। वहां पे पब्लिक स्पेस भी हो गई है और सर्विसेज भी मिलने लगी है। बहुत सारी सर्विस है जो उन्होंने मेंशन की हुई है, तो ये सारी सर्विसेज हमें स्टेडियम में भी मिलनी शुरू हो गई। क्रिएटिंग मिक्स्ड यूज डेवलपमेंट सच एज दिस रीइंफोर्सेस कॉम्पैक्टनेस एंड मल्टीनेशनैलिटी, मेकिंग मोर एफिशिएंट यूज ऑफ लैंड एंड हेल्पिंग टू रीजनरेट अर्बन स्पेसेस। अब ये जो है जितनी भी फैसिलिटीज हमें स्टार्ट हो गई है मिलनी, उनकी वजह से क्या हमें मेन बेनिफिट हुआ है, एक तो मल्टी फंक्शनैलिटी काम शुरू हो गया। ये नहीं कि जो स्टेडियम है सिर्फ स्पोर्ट्स के लिए यूज होगा, बहुत सारी चीजों के लिए वो यूज होना शुरू हो गया। देन मेकिंग मोर एफिशिएंट यूज ऑफ लैंड, लैंड का यूज बहुत अच्छे से स्टार्ट हो गया है। हेल्पिंग टू रीजनरेट अर्बन स्पेसेस, अब जो सिटी की जो स्पेसेस है, ऑब्वियसली सिटी में तो वैसी पॉपुलेशन जो है वो इतनी कंजस्टेड होती है, तो रीजनरेट, तो उनके पास क्योंकि एक्सरसाइज ये सब के लिए स्पेस नहीं होती, इतने ओपन स्पेसेस अवेलेबल नहीं होते, तो उनकी जो लाइफ है वो रीजनरेट होगी, उनको फैसिलिटीज बहुत सारी मिलनी स्टार्ट। दिस ओपन्स द स्पेस अप टू द फैमिलीज वाइडर क्रॉस सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी इंस्टेड ऑफ कैटरिंग ओनली स्पोर्ट्स पीपल एंड स्पोर्टर्स। देयर हैव बीन मेनी एग्जांपल्स ऑफ दिस इन द यूके। द मिक्स्ड यूज फैसिलिटीज एट वेम्बले एंड ओल्ड ट्रैफोर्ड हैव बिकम अ ब्लूप्रिंट फॉर मेनी अदर स्टेडियम्स इन द। अब उन्होंने दो जो एग्जांपल दी है उनमें भी यही बताया गया है कि जो ये फैमिलीज है और जो वाइडर सेक्शन है सोसाइटी का, उनको बहुत सारी फैसिलिटीज मिलनी स्टार्ट हो गई है, जो कि ये फैसिलिटीज पहले किसको मिलती थी, सिर्फ स्पोर्ट पर्सन को मिलती थी और स्पोर्टर्स को मिलती। अब जनरल पब्लिक का भी जो है उनको भी राइट मिल गया है टू यूज द स्टेडियम फॉर मैनी पर्पसेस। नाउ लेट्स हैव द लुक ऑन द ऑप्शन ए, ऑफरिंग इम्प्रूव्ड अमेनिटीज फॉर द एंजॉयमेंट ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट। डेफिनेटली दिस इज नॉट द ऑप्शन। क्यों? क्योंकि इंजॉयमेंट ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट इसकी तो बात ही नहीं हुई। दिस इज रॉन्ग। Bringing community life back into the city environment. This is the correct answer. क्यों? क्योंकि यहाँ पे उन्होंने बोला है it helps to regenerate the urban spaces. अर्बन जो लाइफ है उसको रीजनरेट कर दिया है by giving these various facilities. So definitely जो B है वो हमारा है correct answer. Now let's see. C is facilitating research into solar and wind energy solutions. No, इसकी कोई बात नहीं हुई, so इसको भी हम क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे. And then D, enabling local residents to reduce their consumption of electricity. No, इसकी भी कोई बात नहीं हुई. Again cross, providing a suitable site for the installation of renewable power generations. This is also cross. अब क्योंकि हमने 24 जो है आंसर वो डी में से हमने फाइंड आउट किया था, तो हमने क्यों आपको पता होना चाहिए जो रीडिंग के आंसर्स है वो इन अ हायरार्की होते हैं। डेफिनेटली 25 जो है वो ई से स्टार्ट होएगा, पर ई से हमें सिर्फ वन आंसर मिला है बी। इट मींस वी हैव टू रीड द फर्दर पैराग्राफ आल्सो फॉर द आंसर ऑफ 26। लेट्स सी क्या हमें एफ में हमें आंसर मिलेगा, क्योंकि अभी जी पैराग्राफ बी पेंडिंग है। सो लेट्स रीड द पैराग्राफ। हमने अपना जो बी आंसर है वो हमने पता कर लिया है, सो डेफिनेटली बी आंसर जो है वो तो नहीं है। नाउ वी हैव 4 ऑप्शंस ए सी डी ई। अब हमें इसमें से पिक करना है अपना करेक्ट आंसर। द फिनोमिना ऑफ स्टेडियम एज पावर स्टेशंस हैज अराइजन फ्रॉम द आइडिया दैट एनर्जी प्रॉब्लम्स कैन बी ओवरकम बाय इंटीग्रेटिंग इंटरकनेक्टेड बिल्डिंग्स बाय मींस ऑफ अ स्मार्ट ग्रिड, which is an electricity supply network that uses a digital communication technology to detect and react to local changes in usage without significant energy losses. अब देखो ये जो लाइन है, this is a complex structure. The phenomena से ये लाइन स्टार्ट हो रही है और जाके खत्म हो रही है without significant energy losses. बहुत बार तो बच्चों को इसका मीनिंग ही नहीं क्लियर होएगा। So for that students जिनको की क्लियर नहीं है, what strategy they can opt, they can just cut out the unnecessary information. कैसे? देखो अब हम देखेंगे कि क्वेश्चन का सब्जेक्ट क्या है। The phenomena of the stadium as a power station. अब वर्ब आ गई as arising, वर्ब के बाद अब हमें ऑब्जेक्ट चाहिए। अब यहाँ पे 2 बार जो है वो बाय का यूज हुआ है, यहाँ पे बाय है और ये भी बाय है, ठीक है। एक और कनेक्टर है दैट इज विच,
ये वाला कनेक्टर, और इस विच को हम आगे डिफाइन कर रहे हैं दैट के साथ। तो अब क्योंकि हमें कनेक्टर्स पता चल गए हैं, तो हम क्या करेंगे, कनेक्टर्स का जो सेंटेंस है उसको कट आउट कर देंगे। पहले तो यहां तक हम समझेंगे कि क्या उन्होंने मीनिंग बोला है। अब उन्होंने बोला है ये जो स्टेडियम है पावर स्टेशन की तरह पे वो आए हैं, ताकि हम एनर्जी की प्रॉब्लम को क्या कर सके, उसको सॉल्व कर सके। ठीक है, वो कैसे कर सके ये हमें बाय और आगे कनेक्टर से दिया हुआ है, हमें ये जरूरत नहीं है इसको रीड आउट करने की। अगर आपको सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट मिल गया है देन ऑल्सो यू कैन कंटिन्यू। ठीक है, तो ये अननेसेसरी है उन बच्चों के लिए जिनको की थोड़ा सेंटेंस स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम आती है, मीनिंग समझने में प्रॉब्लम आती है। स्टेडियम्स आर आइडियल फॉर दीज पर्पसेस बिकॉज देयर कैनोपीज हैव अ लार्ज सरफेस एरिया फॉर फिटिंग फोटोवोल्टिक पैनल्स एंड राइज हाई इनफ टू मेक यूज ऑफ माइक्रो विंड टर्बाइन्स। अब ये भी जो है देखो, एक ही लाइन जो है वही डिफाइन की गई है, एक पैराग्राफ में सिर्फ 2 लाइंस बताई हुई है। और अगर आपको तो क्लियर हो गया देन तो वेल एंड गुड, अगर नहीं क्लियर हुआ तो जैसे मैंने ये फर्स्ट लाइन को कट आउट करके आपको मीनिंग समझाया, अब इसको भी वैसे ही ट्राई करो। कोई प्रॉब्लम आई तो कमेंट करो, देन आई विल। Freiburg Max Solar Stadium in Germany is the first of new wave stadium as a power plant, which also include Amsterdam Arena and the Kohischuk Stadium. The later inaugurated in 2009 has 8,844 photovoltaic panels producing up to this and that. अब इस पैराग्राफ में हमें सिर्फ फिगर्स दी हुई है कि कितनी जो है वो पावर प्लांट ने एनर्जी प्रोड्यूस करनी स्टार्ट कर दी है, और नेम दिया हुआ है कि कौन सा जो स्टेडियम है वो की फर्स्ट जो है वो स्टेडियम में आया एज अ पावर प्लांट। तो इलेक्ट्रिसिटी की बात हुई है। नाउ लेट्स रीड दिस ऑप्शंस। ऑफरिंग इम्प्रूव्ड एमिनिटीज फॉर द एंजॉयमेंट ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट, दिस इज क्रॉस, क्योंकि अभी तक भी कोई स्पोर्ट्स इवेंट्स के लिए एंजॉयमेंट की जो बात है वो नहीं हुई, सो दैट्स व्हाई फर्स्ट इज क्रॉस। Facilitating research into solar and wind energy solution. Wind energy solutions की तो बात हुई है, लेकिन किसी रिसर्च की बात नहीं हुई। उन्होंने बोला उन्होंने पैनल स्टार्ट कर दिए हैं, और कितनी फिगर्स है, कौन सा स्टेडियम फर्स्ट आ रहा है, वो सारी जो इन्फॉर्मेशन है पैराग्राफ्स में गिवन है, बट रिसर्च की बात नहीं हुई। फैसिलिटेटिंग रिसर्च, रिसर्च को फैसिलिटेट करने की कोई बात नहीं हुई, सो डेफिनेटली सी इज ऑल्सो क्रॉस। देन डी, enabling local residents to reduce their consumption of electricity. जो कोई भी local residents है, किसी को भी इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन रिड्यूस करने की भी बात नहीं हुई। प्रोवाइडिंग अ सूटेबल साइट फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ रिन्यूएबल पावर जनरेशन, डेफिनेटली दिस इज द आंसर। क्योंकि डेफिनेटली ई में उन्होंने बोला है कि एक सूटेबल साइट जो है वो प्रोवाइड की गई है फॉर द इंस्टॉलेशन एंड रिन्यूएबल पावर जनरेशन। यहाँ पे फर्स्ट लाइन में ही उन्होंने बोला है कि जो स्टेडियम है उसको पावर स्टेशन की तरह हम यूज करेंगे। क्यों यूज करेंगे वो भी सारा रीजन गिवन है, और जो जर्मन का फर्स्ट स्टेडियम है उनकी भी फिगर गिवन है। सो स्टेडियम को एक सूटेबल साइट जो है वो बनाया गया ताकि हम रिन्यूएबल पावर जनरेट कर सके, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सके। ऑल द इंफॉर्मेशन इज गिवन, दैट्स व्हाई अ करेक्ट आंसर इज ई। That's it for today's video. If you like it, do share, subscribe or like my channel. Meet you in the next video. Till then, thank you. Bye bye. Have a nice day.